Hello everyone, how are you all? Fine? Great. Today we are going to discuss about the exercise solution of chapter number 7, Climate and Adaptation. But before we start, one short clip is there for you. So enjoy it and watch it very carefully because you need to learn one lesson from it. So watch it. In ancient times, a king had his men place a huge rock on a roadway. He then hid in the bushes and watched to see if anyone would move the rock out of the way. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers passed by and simply walked around it. Many blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone removed. And so it happened that one day, a peasant came along carrying vegetables. Upon approaching the rock, the peasant laid down his burden and tried to push the rock out of the way. After much pushing and straining, he finally managed. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the rock had been. The purse contained many gold coins and a note from the king explaining that the gold was for the person who removed the rock from the road. You see, in life, every obstacle that we come across gives us an opportunity to improve our circumstances. And while the lazy complain, others will create opportunities through their kind hearts, generosity, and willingness to get things done. So see every problem as an opportunity and a chance to become better and to grow. क्या सीखने को मिलता है हमें इसमें से कि हमें जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, उससे कुछ सीखना है, ठीक है, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके रादर देन गिविंग एक्सक्यूजेस। हम हर वक्त यही तो करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक्सक्यूजेस दे के साइड में हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस वैल्यू इन योर लाइफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन पॉइंट. The first in-text exercise that we are going to discuss is given on page number 107. So open that page. In that one, the questions are fill in the blanks with the correct word. The first blank is the weather forecast predicts the weather of a place for the next few dash. अभी इसमें days आएगा या year आएगा, हमने पढ़ा है, याद करो, उसमें days आएगा. So correct option is days. So you have to write down with pencil in that given blank days. Then second, the diameter of the earth is about 12 dash kilometers. कितने किलोमीटर्स है उसका diameter अर्थ का? तो 12,000. तो यहाँ पे आंसर आएगा 1000. Then third is temperature, humidity, rainfall, cloud cover, etc. are called dash elements. तो उसको बोला जाता है weather element. तो correct option is weather. Then fourth is a hygrometer is used to measure dash. तो उसमें आंसर आएगा relative humidity. Then fifth is the climate of the earth dash remained the same through the ages. तो उसमें क्या आएगा? Has आएगा, has not आएगा? Definitely has not आएगा. तो आंसर is has not. Then sixth one is the earth's tilt is about dash. कितने डिग्री पे है? तो that is 23.5 डिग्री. Seventh one is the earth rotates about its equator or axis. Answer is axis. So ऐसे आपको ब्लैंक में पेंसिल से आंसर्स लिखने हैं. Here I also kept this answers for the reference purpose. अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो. Now the next exercise that is from Let's Remember on page number 113. अभी देखो, अगर इसके आंसर्स आप इसमें नहीं लिख पाते हो तो आप इसको फेयर नोटबुक में भी लिख सकते हो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. तो हियर यू हैव टू नेम द हैबिटेट एंड वन एडेप्टेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. तो पहले तो हमें ये एनिमल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसकी हैबिटेट लिखनी है और फिर उसका एक एक एडेप्टेशन लिखना है. अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से वो समझा होगा तभी आप ये लिख पाओगे.
तो फर्स्ट एनिमल इज विच वन इज दैट इज कंगारू रैट। उसका हैबिटेट क्या है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। कैसा? तो डेजर्ट जैसा। उसका एडेप्टेशन क्या है? तो एक एडेप्टेशन है कि दे डोंट ड्रिंक वाटर टू लिव इन द ड्राई क्लाइमेट। वो पानी पिए बिना भी रह सकते, वो सीड्स वगैरह में से पानी का कंटेंट ले लेते हैं। देन सेकंड वन इज दैट इज पोलर बेयर, और उसका हैबिटेट कौन सा है? तो इट इज़ लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। एंड एडेप्टेशन क्या है? तो दे हैव ब्लबर अंडर द स्किन टू कीप देम वार्म। ब्लबर क्या है? तो डिपोजिशन ऑफ फैट टिश्यूज, जो उनको वार्म रखने में हेल्पफुल होता है। देन थर्ड वन इज दैट इज डेजर्ट फॉक्स। उसका हैबिटेट कौन सा है? अगेन इट इज ऑल्सो लिविंग इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट लाइक क्लाइमेट। और एडेप्टेशन क्या है? तो दे आर नॉक्टर्नल एनिमल, दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू डिस्पर्स द हीट। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है, तो अगर आप ये सब कुछ नहीं लिख पाते तो आप फेयर नोट बुक में भी लिख सकते हो। इसके साथ मैंने उसके आंसर्स भी रखे हैं, आप देख सकते हो उसे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप वो लिख सकते हो उसमें से। दिस वन इज विच यू कैन सी दैट इज ऑफ कंगारू रैट। उसके बाद है ये पोलार बेयर का, जिसमें हैबिटेट और एडेप्टेशन दोनों लिखे हैं, और फिर बाद में है डेजर्ट फॉक्स का। ठीक है, इसमें भी हैबिटेट एंड एडेप्टेशन बोथ आर गिवन, तो इसमें से आप लिख सकते हो। Here are the keywords which are given at the end of the chapter. ये भी आपको फेयर नोट बुक में लिखने हैं in the beginning of chapter only. यहाँ पे weather, climate, angle of inclination, adaptation are given. These keywords can be asked in 1 mark question. Now let us solve the textual exercise. In that the first question is of objective type questions. In that first one is fill in the blanks with the correct word. The first blank is in hot and dry climate water is dash and animals need adaptation to dash the water. तो water कैसा होता है hot and dry climate में? कम होता है, तो that is what the scarce. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा scarce. एंड द एडेप्टेशन में वाटर का क्या करना है उनको? वाटर हैज़ टू बी कंजर्व, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, करेक्ट ऑप्शन है कंजर्व। तो पहले में scarce एंड दूसरे में कंजर्व। देन सेकंड वन इज डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? तो नाम से ही पता चल जाएगा, दैट इज रेनबोज। देन थर्ड वन इज प्लेसेस क्लोजर टू द डैश आर जनरली हॉट। तो उसमें क्या आएगा? पोल्स और इक्वेटर। पोल्स पे तो ठंड बहुत होती है ना, तो आंसर होगा इक्वेटर। देन फोर्थ वन, फिनेक्स हैव लॉन्ग ईयर्स टू हेल्प इट इन डैश हीट। तो कंजर्विंग और डिसिपेटिव करना मतलब रिलीज करना, तो उसमें क्या आंसर आएगा? दैट इज डिसिपेटिंग, सेकंड वन। Then in fifth one, in polar regions animals adapt to conserve dash to stay warm। तो उसमें आएगा करेक्ट ऑप्शन बॉडी हीट। वो लोग बॉडी हीट कंजर्व करते हैं वार्म रहने के लिए। अंडरस्टूड ऑल? यहाँ पे मैं आंसर्स भी रखूँगी, तो एक बार आप रिफर कर लेना वीडियो पॉज करके। सी हियर इज़ द इमेज ऑफ द आंसर, तो आप इसमें से रिफ़र कर सकते हो। थोड़ी देर वीडियो पॉज करना, और हाँ, जब भी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन आप सुन रहे हो तब आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक ओपन ही रखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अंडरस्टूड ऑल? नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दैट इज बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब MCQ। तो फर्स्ट MCQ इज व्हाट आर ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नो, क्लाउड कवर एक्सेट्रा कोल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? दैट इज वेदर एलिमेंट्स। देन दैट इज करेक्ट ऑप्शन सी, वेदर एलिमेंट्स। सेकंड वन इज व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज अ होल, मीन्स एज अगेंस्ट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ डिटरमाइंड बाय। किससे डिटरमाइन होता है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन रीड करो और सोचो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सोचा कुछ? यहाँ पे A एंड C दोनों करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड C। देन थर्ड वन इज विच ऑफ दिस प्लेसेस कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ लोअर ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे 4 सिटीज़ के नाम दिए हैं, तो अभी आपको देखना है कि कौन से सिटी में ह्यूमिडिटी कम से कम होगी। तो देखो जयपुर, जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान जनरली कंसिडर किया जाता है स्टेट ऑफ डेजर्ट। तो यहाँ पे डेजर्ट है, तो मतलब हॉट एंड ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पे क्लाइमेट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जयपुर।
Then fourth one is, what is the approximate distance of the sun from the earth? तो इसके लिए तो आपको वीडियो अच्छे से देखना होगा या फिर टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करनी होगी। तो उसमें ऑप्शन है करेक्ट ए, दैट इज 149 मिलियंस किलोमीटर। देन फिफ्थ वन इज, व्हाट डज अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर मेजर? वो क्या मेजर करता है? तो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर ही तो मेजर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। देन सिक्स्थ वन इज, व्हाट वुड 69% रिप्रेजेंट ऑन अ वेदर रिपोर्ट? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिडिटी। Then seventh is, which of these help to induce a faster evaporation from the animal body for a cooling effect? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो चारों के चारों ऑप्शन देखो, एक्टिव स्वेटिंग, पैंटिंग, लीकिंग, फ्लैपिंग, लॉन्ग ईयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सारे के सारे ही तो फॉलो होते हैं किसके लिए? तो कि ये एनिमल्स का मेन हैबिटेट कौन सा है? हॉट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, जहाँ पे जनरली टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब क्वाइट वार्म दिस रीजन्स आर। इसीलिए यहाँ पे जो भी एनिमल्स मिलते हैं उनको टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है टू कीप देम कूल। और उसी वजह से ये सारे जो भी हमने अभी डिस्कस किए ना, ये फास्टर इवापोरेशन, एक्टिव स्वेटिंग, पैंटिंग, ये सारे ट्रिक्स वो फॉलो, एडेप्टेशन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी कूल रहती है। दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। देन विच ऑफ दिस एनिमल्स आर शेप्ड और कलर्ड टू मैच देयर सराउंडिंग्स? तो उसमें कौन से आएंगे? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लीफ एंड स्टिक इंसेक्ट। देन नाइन्थ MCQ इज, इन विच ऑफ दिस वेज डू एनिमल्स गेट एडेप्टेड टू देयर हैबिटेट? तो उसमें बॉडी शेप एंड साइज, बॉडी फंक्शन, एनिमल बिहेवियर या ऑल ऑफ दिस। तो अगर एनिमल्स को अडेप्ट करना है तो डिफरेंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वो अडेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों वेज है वो करेक्ट ही है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। देन 10th इज, विच ऑफ दिस इज द मेन रीजन वाई पेंगुइन हडल टुगेदर? हडल टुगेदर मतलब क्राउड टुगेदर। तो उसमें है करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टू स्टे वार्म एंड फाइट देयर एनिमीज। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करना। मैं यहाँ पे आंसर भी रख रही हूँ, तो उसको देखना और पॉज करके आंसर्स नोट डाउन आप कर सकते हो और समझ सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड एक्सरसाइज, दैट इज ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दैट गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो, अगर एक से ज़्यादा एग्जाम्पल है, 2 से ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो आप आंसर्स ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखे हैं या फिर दिखाए गए हैं वही आप लिखोगे। अगर दूसरे हैं तो आप टेक्स्ट बुक में से रीड करके भी लिख सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेदर एलिमेंट्स। तो वेदर एलिमेंट के नाम लिखने, वो 4-5 हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने? ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नो, क्लाउड कवर एक्सेट्रा। तो उनमें से कोई भी 2 लिखो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, देन सेकंड वन इज इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर वेदर एलिमेंट। तो उसमें लिखो कि अगर ह्यूमिडिटी मेजर कर रहे हैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर, और अगर रेनफॉल मेजर कर रहे हैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट है रेनगोज। देन थर्ड वन इज प्लेसेस दैट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो उसमें है एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ पे मिलेंगे? तो या तो फिर आपको इक्वेटर पे मिलेंगे या तो फिर पोल्स के एरिया में मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखो इक्वेटर एंड पोल्स। देन फोर्थ, एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट। तो बहुत सारे एनिमल्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 बोल रही हूँ, दैट इज गोरिल्ला एंड मंकीज। देन फिफ्थ वन इज आर्टिक बर्ड्स दैट माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग द विंटर। तो उसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, दैट इज स्नोगीज एंड आर्टिक टर्न्स। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। अंडरस्टूड ऑल? नाउ थर्ड एक्सरसाइज इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट है, नेम 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट। फर्स्ट वन, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लैनेट एज अ होल। तो उसमें कौन से 2 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड सेकेंड वन इज अर्थ्स टिल्ट। ये दोनों फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। उसको कौन अफेक्ट करेगा?
तो उसमें भी दो फैक्टर्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड एंड सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ माउंटेन. अंडरस्टूड. Now second one is what are the factors of a climate that could be affected by the presence of a mountain near a place. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर के नाम लिखने हैं, क्लाइमेट के दो फैक्टर के नाम लिखने हैं जो भी अफेक्ट होंगे किसकी प्रेजेंस से, माउंटेन की प्रेजेंस से. तो क्या अफेक्ट होगा, आंसर आएगा. तो पहला तो फैक्टर है दैट इज डायरेक्शन ऑफ विंड. ठीक है, एंड देन रेनफॉल. रेनफॉल कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डायरेक्शन ऑफ विंड एंड रेनफॉल दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन. देन थर्ड वन इज व्हाट वुड बी द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इफ इट इज लोकेटेड क्लोज टू द सी. तो कैसा क्लाइमेट होगा, तो द क्लाइमेट वुड बी मॉडरेट क्लाइमेट विथ ग्रेटर ह्यूमिडिटी. ठीक है, जितना सी से नज़दीक का एरिया है तो ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज ही होगी, और अगर ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो दैट प्लेस वुड नॉट बी टू मच वार्म और नॉट टू मच कोल्ड. ठीक है, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा. देन फोर्थ वन इज वाई डू सम बर्ड्स लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स शो माइग्रेशन. एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है तो माइग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो अगर देखो कि ठीक है दूसरे सीज़न के टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर विंटर के टाइम पे तो इट वुड बी टू कोल्ड. मतलब कि वो बर्ड्स माइट बी जिंदा भी नहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न है कि दे आर माइग्रेटिंग बिकॉज टू गेट वार्मर कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. और सेकंड रीज़न क्या है, तो ये विंटर में एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से उनको खाना भी नहीं मिलता है. सो द सेकंड रीज़न फॉर द माइग्रेशन इज़ टू गेट द फूड अवेलेबिलिटी. तो ये दो रीज़न की वजह से दिस बर्ड्स आर माइग्रेटिंग स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन. अभी एक बात ध्यान में रखना, ये जो गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग करके जो क्वेश्चन दिया है उसमें फिफ्थ वन में चेंजेस है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि फिफ्थ में जो आंसर लिखा है ना वो करेक्ट नहीं है, और उसकी जगह पे ये अभी जो आंसर आएगा ना वो करेक्ट है. तो आपको लिखना है स्नो गिज एंड आर्टिक टर्न्स. आपको जो आंसर की पीडीएफ भेजेंगे हम लोग, उसमें ये करेक्ट आंसर नहीं होगा तो ये आपको वीडियो रिफ़र करके ही लिखना पड़ेगा. अंडरस्टूड ऑल. नाउ लेट अस स्टार्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट. तो उसका आंसर यहाँ पे दिया है. अगर टेक्स्ट बुक में से देखना है तो इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 108. 108 पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस करके दिया है पॉइंट. उसमें देखो फर्स्ट फैक्टर दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर दैट इज नॉन एज लैटिट्यूड. ठीक है, तो वो पूरा पैराग्राफ आपको इसमें लिखना है. व्हाट इज दैट, तो कि प्लेसेस क्लोजर टू द इक्वेटर आर वार्मर देन द प्लेसेस क्लोजर टू द पोल्स. फॉर एग्जाम्पल इट इज मच मोर वार्मर इन इंडिया देन ग्रीनलैंड. This is because the sun's rays fall directly on the equator and at an angle on the poles. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है दैट इज़ फिगर नंबर 7.4. ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा. दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट लॉन्ग आंसर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिव एनी 5 adaptations that help the camel to survive in hot and dry climates. So over here you have to write down the adaptations that camel possess. For that you can refer from here from this video, and if you wish to refer from the textbook then it is there on page number 110. In that total 6 adaptations are given. Out of 6 you have to write 5 adaptations, but try to remember all 6 points because it will be helpful in other questions also. Understood what to write in this answer? Now the third question is what helps polar bears to survive in extremely cold climate. So over here you have to write down the adaptation of polar bear which is given on page number 112. वहाँ पे पोलर बेयर करके जो पॉइंट दिया है उसके नीचे 3 सब पॉइंट्स है. दिस 3 points you have to write. The first point is about the thick layer of fat which is known as blubber. This is one of the adaptation. Then second adaptation is
white fur of the polar bear, that is acting as a good insulator against the cold. And third adaptation, that female polar bears dig dens in the snow where they remain dormant during the worst part of the winter. That allows them to survive without food or water during the cold winter season. And the fat stores of the body gets converted into energy for the body to function during the hibernation. And at the time only the cubs are born in the den itself. ये 3 पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है. I think this part is understood to all. Now let us move to the next exercise, that is let's recall. This let's recall exercise is homework for you. For this you have to refer the chapter, you have to read the chapter thoroughly, and then you have to get the answer, and then that answers you have to write down in the given blanks. Understood? The next exercise is from the let's observe. In that one, first question is that name the animal and write one characteristic adaptation that each of them shows to survive in its habitat. उसमें पहला तो एनिमल है, देख के ही पता चल जाएगा हमें कि दैट इज़ व्हाट, कैमल. एंड व्हाट इज़ इट्स हैबिटेट, दैट इज़ डेजर्ट. और उसका कोई भी 6 एडेप्टेशन हमने लर्न की है, तो आउट ऑफ 6 एनी वन एडेप्टेशन यू हैव टू राइट. जो आपको अच्छी लगे वो लिख लेना. जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो द हम्प ऑफ कैमल इज़ अ स्टोरेज ऑफ फैटी टिश्यूज़. ठीक है. देन सेकंड वन इज़ पेंगुइन, हैबिटेट इज़ पोलर रीजन. देन कोई भी एक एडेप्टेशन लिख लो. जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मेल पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू प्रोटेक्ट एग्स फ्रॉम द सीवियर कोल्ड. देन थर्ड एनिमल इज़ व्हाट इज़ दैट, इट इज़ स्टिक इंसेक्ट. Habitat of this stick insect is hot tropical forest. And what is its adaptation? Their color. Their color matches its surroundings so that they gets protected from the predators. Next is second exercise. Look at the pictures and answer the question. The first one, which of these is better suited to live in the Arctic? सर्कल इट. यहाँ पे 2 एनिमल्स आपको दिए हैं. यू कैन सी इन दोनों में से आर्टिक रीजन में कौन एनिमल रहता है, मतलब ये किसके, मतलब ये दोनों में से किसकी वो हैबिटेट है आर्टिक रीजन. एंड वो एनिमल के ऊपर आपको सर्कल करना है. ठीक है. तो अभी आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एनिमल होगा. तो फर्स्ट वन जो वाइट फर वाला दिख रहा है ना, दैट इज़ व्हाट, आर्टिक फॉक्स. तो ये उसकी हैबिटेट है. तो ये यहाँ आर्टिक फॉक्स के ऊपर सर्कल करो. देन सेकंड वन, हाउ डज इट्स फीट हेल्प इट टू सर्वाइव इन द आर्कटिक. कैसे उनके फीट हेल्प करते हैं. तो हियर देयर फीट हेल्प टू मूव इन द स्नो ईजिली. देयर फीट आर मॉडिफाइड so that they can easily walk on the snow. At that time their feet are acting as a snowshoes. That is why they are able to walk easily on the snow. Then third question is, how does its coat help it to survive in the Arctic? उनका कोट कैसे हेल्प करता है. That white fur which they bear. तो उनका कोट जो है वाइट फर, इट इज़ एक्टिंग एज अ इंसुलेटर. और इंसुलेटर का मतलब क्या है कि दे विल नॉट एक्सकेप हीट फ्रॉम देयर बॉडी. तो हियर आंसर यू हैव टू राइट acts as an insulator against the cold to keep them warm. Understood all? Over here answers are given. You can see here these are the answers of the let's observe exercise. If you wish to write it down from this video, then pause the video for a while and note down your answer into the textbook with the help of pencil. Remember, with pencil only. Now next exercise is from the let's apply and let's analyze and evaluate. That is given on page number 117. This you will solve by your own. Remember, for this you have to read the chapter properly and then you have to find out answers. And when you will find answer, you have to mention it in your fair notebook, because over here space is not given. So you have to write down in the fair notebook. But remember, पहले तो आप पेंसिल से लिखना. इफ़ एनी चेंजेस में देयर एट दैट टाइम यू कैन करेक्ट दैट.
लेट्स एनालाइज एंड इवैल्यूएट करके जो है, अगर उसके आंसर्स टेक्स्ट बुक में आप लिख पाते हो तो पेंसिल से लिख लेना, वरना ये भी आप फेयर नोटबुक में ही लिखना। अंडरस्टूड? तो ट्राई टू फाइंड इट आउट बाय योर ओन। दिस वुड बी योर होमवर्क। With this exercise gets over. Each and every question with their answer, you have to write it down properly in the Fair Notebook of Biology. Remember, जो भी आपको होमवर्क दिया है वो आपको चैप्टर में से फाइंड आउट करने हैं और उसके लिए चैप्टर प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा और पेंसिल से वो आंसर लिखना, अगर मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर सको। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल।